Good evening to all my dear students. I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजल एंड इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल. नाउ प्रपोजल जिसे ऑफ़र भी बोला जाता है, सो अंडर द इंडियन लॉ इसे हम प्रपोजल बोलते हैं, अंडर इंग्लिश लॉ इसे ऑफ़र बोला जाता है. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रिंसिपल्स of law of contract. So in this video we'll see what is proposal and essentials of proposal. इसे बेसिकली हम ऐसे समझते हैं कि दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट. सो इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसे पहले स्टेज पे देखा जाता है जिसे हम प्रपोजल बोलते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्रपोजल एंड इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल इन दिस वीडियो. So we'll start with the definition of proposal. So as per Indian Contract Act, under section 2A of the Indian Contract Act, proposal का definition दिया गया है. And as per that section, proposal means when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक है प्रपोजर या ऑफरर और दूसरा है ऑफरी या प्रपोजी. सो व्हेन प्रपोजर दैट इज़ ऑफरर ऑफर करता है, प्रपोजल देता है, तो हिज डिज़ायर इज़ एक्चुअली एक्सप्रेसिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रपोजी और ऑफरी, and he is expecting that as per his desire the offeree supposed to act or supposed to give the consent to that particular offer or proposal. Then in this, the ultimate object of the proposer or offerer is nothing but to get the assent to that particular offer from the offeree. तो कॉन्ट्रैक्ट में हम मानते हैं कि प्रपोजल जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो फ्रॉम द बिगिनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है. ना इसके इसेंशियल्स क्या है? सो फर्स्ट इसेंशियल दैट द प्रपोजल कैन बी मेक इन अ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मैनर. तो जहाँ पे प्रपोजल जो होता है वो दोनों मैनर में हो सकता है. तो एक्सप्रेस का मतलब है इट कैन बी ईदर ओरल और इन रिटन फॉर्म. So express mode of proposal consists of oral and written form, whereas implied mode of proposal consists of only the conduct of the parties. So जो conduct होता है parties का उस way में भी proposal दे सकते हैं. So conduct में हम understand करते हैं कि suppose a person went to a shop and he picked one article from that shop and he paid that price whatever mention on that article to the shopkeeper. So यहाँ पे implied manner में the person who has picked up that article has given the proposal to that shopkeeper and shopkeeper accepted the price and there is a formation of that particular contract in between the both the parties. जब orally या फिर express manner में written manner में जब proposal दिया जाता है तो when one person is indicating or offering to another person, say for example you can purchase my car or you can purchase my house for 2 lakh rupees and that offer may be made to a specific person, say A is making offer to B, then that is a express manner of proposal what A is giving to the B. So in this manner a proposal can be made in a express or in a implied manner. Second, proposal to whom it should be made. तो proposal जो है definite person को या persons को किया जा सकता है. तो अगर वो किसी एक बंदे को indicate कर रहा है that A is giving a proposal to B, then it should be only in regards with B will be applicable. And if suppose it is made to the general public, then it can be applied to all the persons whosoever is receiving or getting a knowledge of that particular proposal. तो जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई अगर रिवॉर्ड डिक्लेयर करता है, if somebody
found his dog, then he will pay that much amount as a reward to that person. Now this offer he is making through advertisement to public at large, and so that apply to whole world. Whereas when one person is giving a proposal to only a specific person, suppose A is offering only to B that he is willing to sell his house to B for a particular consideration, then that is applicable only to B. So in that way, a offer or the proposal can be made to a certain person or persons. Next, act or abstinence. So प्रपोजल में कोई चीज़ आप ऑफर करते हैं तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने वो चीज़ करनी चाहिए, या फिर प्रपोजल में निगेटिव मैनर में भी प्रपोजल दिया जा सकता है कि जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो दोनों मैनर में प्रपोजल जो है वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सो इन अ नेगेटिव सेंस, व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट ए एंड बी, इन दैट ए ओज टू बी अ पर्टिकुलर अमाउंट से 5000, तो बी अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्यू डेट के बाद अगर ए उसको पे नहीं करता है तो उसको ऑफर देता है दैट मैं उसके खिलाफ या तुम्हारे खिलाफ मैं कोई भी सूट फाइल नहीं करूँगा अगर तुमने मुझे जो 5000 रुपीज़ है उसके डबल मुझे वो अमाउंट विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड से विद इन 15 days 1 month अगर मुझे वापस दिया तो। सो इन दैट मैनर प्रपोजल जो है वो इन वे ऑफ नेगेटिव सेंस, दैट इज इन अ एब्स्टिनेंस अल्सो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, असेंट ऑफ ऑफरी। सो जो ऑफर है, जो प्रपोजल है, वो एक इंटेंशन के साथ किया जाता है कि जिसमें ऑफरर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि ऑफरी ने उसको कंसेंट देना चाहिए, एंड सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रपोजल। सो प्रपोजल जब भी दिया जाता है तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि जो ऑफरी है उसने उसको कंसेंट देना चाहिए, असेंट देना चाहिए। वैसे ही प्रपोजल जब दिया जाता है तो वो सर्टन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सो स्पेसिफिक होना चाहिए तो इसका मतलब है कि वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। सो इन जनरल व्हेन गवर्नमेंट is issuing a tenders and government is announcing that whatever conditions mentioned in the tenders, so whosoever want to apply for that tenders, he is supposed to fulfill all the conditions. So in this transactions, whatever conditions prescribed in terms of facts, in terms of figures, in terms of measurements, the every person who is applying for that tenders, he is supposed to follow all those measurements, figures as mentioned in the terms and conditions of government. And in this way we are identifying that जो टेंडर भर रहा है, जो ऑफर दे रहा है गवर्नमेंट को, by filling that tender, he is actually giving a certainty to his offer. तो ऑफर वही एक्सेप्ट होता है या ऑफर वही वैलिड होता है जो सर्टन होता है, क्लियर होता है, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रपोजल। नेक्स्ट है, द प्रपोजल मस्ट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन या फिर जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं उसको हम लीगली एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और इसके लिए बाल्फर वर्सेस बाल्फर ये एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो इंग्लैंड जाते हैं फॉर द वेकेशन, लेकिन जब वो रिटर्न आ रहे हैं ड्यू टू हेल्थ रीज़न ऑफ वाइफ, हस्बैंड रिटर्न आता है लेकिन वाइफ वहाँ पे ही रहती है। और जब वाइफ वहाँ पे रहती है तो हस्बैंड उसको प्रॉमिस करता है कि समथिंग लाइक £30 एवरी मंथ ही विल गिव टू हर एज a very allowance for treatment of that wife। लेकिन बाद में जब दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो हस्बैंड वो अलाउंस देना बंद कर देता है।
तो वाइफ जो है ऑन दिस ग्राउंड उसको चैलेंज करती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन कोर्ट जो है ये डिसाइड करता है कि जो डोमेस्टिक नेचर के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट वी कैनॉट कवर अंडर द रियाम ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड सो बाल्फर वर्सेस बाल्फर ये क्लियरली कैटेगरिकली मेंशन करता है कि प्रपोजल में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना ज़रूरी है सो दैट यू कैन एनफोर्स दैट प्रपोजल अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन का होना भी ज़रूरी है। सो प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड। एंड इसके लिए भी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लर्न करते हैं। तो जो मुनीम है वो एक्चुअली जो नेफ्यू है उसको ढूंढने के लिए चला जाता है एंड ही एक्चुअली फाउंड दैट नेफ्यू। लेकिन जब वो उसको ढूंढता है उसके पहले ही उसके मालिक ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है कि जो भी उस नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो रिवॉर्ड जो है वो डिक्लेयर जो किया है वो मुनीम के नॉलेज में नहीं है। और जब मुनीम वापस आता है और वो नेफ्यू को अपने मालिक को वापस देता है तब उसको मालूम पड़ता है कि देयर वॉज अ रिवॉर्ड डिक्लेयर बाय हिज मास्टर एंड सो ही क्लेम दैट रिवॉर्ड फ्रॉम द मास्टर फॉर द वर्क व्हाट ही हैज़ डन फॉर हिज मास्टर। लेकिन मास्टर यहाँ पे इज रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ मुनीम बिकॉज एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर announcement munim was not aware or munim were not having the knowledge of that particular announcement, and on that ground the categorical judgment was given in Lalman Shukla versus Gauri Dutt, which says that proposal must be communicated before its acceptance। तो जहाँ पे नॉलेज में ही प्रपोजल नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं दिया जा सकता। सो प्रपोजल जब नॉलेज में आता है तभी उसको हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं और एक्सेप्टेड प्रपोजल ही वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है। सो दीज आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रपोजल व्हाट वी लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो आई होप इन शॉर्ट आपको ये पॉइंट्स जो है वो आप याद रखेंगे एंड इन रिगार्ड्स विथ प्रपोजल ये वीडियो जो है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। फॉर मोर वीडियोज़ ऑन माई चैनल कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।